Hello students, so in the previous lecture we were talking about the pre-Mendelian concepts of inheritance, okay? Then we talked about the Mendelian concepts of inheritance, so we'll continue the Mendelian concepts of inheritance today as well, okay? And we'll talk about the work of Mendel. So we'll talk about the work of Mendel in this lecture. So work of Mendel के अगर बारे में बात करते हैं तो everyone has an idea कि work of Mendel क्या था, because आप लोगों ने ये चीज़ 10th में पढ़ रखी है, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वही चीज़ आप अभी पढ़ोगे, ठीक है, बिकॉज दैट वाज द वर्क ऑफ मेंडल. Okay, so let's start with the work of Mendel. So I'll start with the hybridization experiment, that is the monohybrid cross and the dihybrid cross. So I'll start with the hybridization experiment. Hybridization experiment. So there were 3 steps of hybridization experiment जो मेंडल ने परफॉर्म किया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, तो उसके 3 मेन स्टेप्स थे. So the 3 main steps were, first was selection of parents. What character are you looking for? और वो character parent में present है. So first thing is selection of parents. The second step was the cross pollination between those parents. The second step is cross pollination, and the third step, that is self pollination. First step is selection of parents, second step is cross pollination, and third step is self pollination among the offsprings. ठीक है. So the first work of Mendel, the first experiment Mendel ने किया था, that was termed as the monohybrid cross. That was termed as the monohybrid cross. क्यों monohybrid cross कहा गया? Because यहाँ पे there was a cross between two plants, okay, or let's say two different plants, okay, having difference in one character. So I'll put it as cross between two plants, cross between two plants, okay, which differ in one pair of character, which differ in one pair of character, which differ in one pair of contrasting character, which differs in one pair of contrasting character. और आपको पता है वो character कौन सा था? That particular character was height. That particular character was height. So character यहाँ पे जो था, that was the height of the plant. Okay. And to be more specific अगर मैं लिखूँ तो I can put it as स्टेम हाइट. जो हाइट होता है वो स्टेम का होता है, ठीक है. एंड वी हैड टू वेरिएशंस अवेलेबल, वी हैव टू ट्रेट्स फॉर इट. देयर इज ट्रेट 1, देयर इज ट्रेट 2. ट्रेट 1 एंड ट्रेट 2. और ट्रेट 1 में आपको पता है देयर वाज टॉल प्लांट एंड देन देयर इज dwarf plant. So we have tall plant and dwarf plant. ठीक है. So monohybrid cross को monohybrid cross इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है. Okay, one pair of contrasting characters की बात हो रही है. That is the reason we term it as the monohybrid cross. ठीक है. And I'm talking about which plant? I'm talking about Pisum sativum. And why we are talking about Pisum sativum? Why did Mendel choose Pisum sativum? We have talked about it in the previous lecture. ठीक है. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर की बात हो रही है. वो कैरेक्टर कौन सा है? वो है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द स्टेम. और उसकी दो वेराइटीज अवेलेबल है, दो वेरिएशंस अवेलेबल है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ. क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ. ठीक है. तो आप क्या कराओगे? पेरेंट्स को लोगे और पेरेंट्स को क्रॉस कराते हो. ठीक है. तो पेरेंट्स को जब आप क्रॉस कराते हो तो पेरेंट जनरेशन जो होती है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है हमेशा. फर्स्ट जनरेशन जो है जब आप क्रॉस करा रहे हो, दैट इज पेरेंटल जनरेशन.
The parental generation is always supposed to be pure breeds. They should be pure. We term them as true breeds या फिर pure line breeds या फिर pure line breeds बोलते हैं. Okay, what does it mean? It means that they should be pure for that particular character. They should be pure for that particular character. That means if the plant has the character dwarf, so it should have the genes small t small t. If the plant is for character tall, so it should have capital T, and if it is for dwarf, it should have small t. मतलब दोनों जो alleles है वो क्या है, सेम है. So if both the alleles are same, we term it as the pure breed. अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, this is not a pure breed, this is a mixed breed, this is a hybrid, because it has capital T and small t. For a pure breed, it should have both the capital T's or both the small t's. ठीक है, सिंपल है पेरेंटल जनरेशन. तो आगे बात करते हैं पेरेंटल जनरेशन की. जब आप क्रॉस कराते हो, I hope this is clear. Selection of parents, cross pollination, self pollination. Monohybrid because one pair of character I am talking about, that is the stem. Pair क्यों बोला? क्योंकि देखो pair हो गया tall and dwarf. This is a pair. Character is one. Height. So parental जनरेशन की अगर बात करते हैं और आप पेरेंट्स को क्रॉस कराते हो, तो आपको पता था कि यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं पीसम सटाइवम में. ओके, सो पीसम सटाइवम के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, पेरेंटल जनरेशन. सो आप जब क्रॉस करा रहे हो तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू टेक अ मेल प्लांट एंड अ फीमेल प्लांट. बट यहाँ पे क्या है, द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. The flowers are bisexual, so I have to consider one plant as male and another plant as female. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने वो टेक्निक पढ़ रखी है, that is emasculation करते हो. emasculation है, bagging है, debagging है, dusting है, और dusting के बाद क्या होता है, rebagging है. dusting के बाद क्या होता है, rebagging है. So उसके थ्रू आप कंसिडर कर सकते हो one flower as the male flower, another flower as female flower. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ because we are using bisexual flower. तो यहाँ पे स्टेप्स इंक्लूड हो जाएंगे. कौन से स्टेप्स इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो द फर्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इज emasculation, that is removal of the male reproductive part from the flower. So emasculation है, फिर क्या है, बैगिंग है, फिर आप उस फ्लावर को कवर कर देते हो. ओके, कौन से फ्लावर को, जो जिसको आप कंसिडर करोगे एज फीमेल फ्लावर. ठीक है, सो दैट नो अदर पोलन कम्स एंड इंटरेक्ट्स विद द पिस्टल. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डीबैगिंग करोगे. जब पिस्टल मैच्योर हो जाता है, इट बिकम्स एक्टिव, इट बिकम्स रेडी टू रिसीव द पोलन, तो आप डीबैगिंग करोगे. और डीबैगिंग के बाद क्या करोगे, आप जो डिजायर्ड पोलन है उसको डस्टिंग करोगे. उसकी क्या करोगे, डस्टिंग करोगे उसके ऊपर. ठीक है, और फिर डस्टिंग के बाद क्या होगा, आप उसको फिर से रीबैग कर दोगे. क्या करोगे, रीबैगिंग. ठीक है, और रीबैगिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा और फिर सीड्स मिलेगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस के थ्रू आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंसीडर कर सकते हो एज मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर. ठीक है, तो लेट्स से आई कंसीडर वन एज द मेल एंड अदर एज द फीमेल फ्लावर. ठीक है, तो मेल की अगर बात करेंगे तो आपको पता है 4 होल्स होते हैं. कौन से 4 होल्स होते हैं, सो इट इज सपोज टू हैव द गाइनोशियम, एंड्रोशियम, then we have the calyx, I'm sorry, corolla and the calyx. Same goes here. So if I am considering this bisexual flower as a male flower, so I need to remove the gynoecium. ठीक है, gynoecium निकाल दूंगा मैं, then only it can be considered as the male flower. बचा क्या, एंड्रोशियम. अगर मैं इसको फीमेल कंसिडर करूंगा तो आई नीड टू बी टेकिंग आउट द एंड्रोशियम. I need to be taking out the androecium. So अब क्या हो गया, gynoecium बचा, that is the female part. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो अब क्या करेंगे, इनके बीच में आपको क्या कराना है,
आपको इनके सीड्स कलेक्ट करने हैं, ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद आप इनके सीड्स कलेक्ट करोगे और जो सीड्स मिलेंगे आपको seeds collected. Okay, these seeds are to be sown in the next season. Seeds are sown in next season. ठीक है, अब यहां पे जो सीड्स मिले, इन सीड्स को आप जब ग्रो करोगे तो आपको पता है कौन सा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है. सो ऑल द प्लांट्स आर tall. All the plants are tall. ये बात आपको पता है, ठीक है. All the plants are tall. फिर आप क्या कराते हो, जितने भी प्लांट्स आपको मिले टॉल प्लांट्स, उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो. क्या कराते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं. यहां पे क्या कराया था? यहां पे अपन ने कराया था क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, दिस वॉज क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ इट्स सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन में अपन को क्या मिलता है? तो यहां पे भी क्या करेंगे? सीड्स को कलेक्ट करेंगे. सीड्स कलेक्टेड. फिर आप क्या करोगे? सो इट इन द नेक्स्ट सीजन. ओके, सोन इन नेक्स्ट सीजन. और फिर आपको क्या मिलेगा? आपको प्लांट्स मिलेंगे. और इस प्लांट का रेशियो क्या आया था? सो रेशियो आया था टॉल एंड डॉफ. तो रेशियो था 3:1. क्या रेशियो था? 3:1 वॉज द रेशियो. ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि यार पीसम सटाइवम के पास 7 कैरेक्टर्स है, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो वी डिड टॉक अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर. तो ये तो मैंने एक कैरेक्टर के बारे में बात करी जहां पे आपको रेशियो क्या मिल रहा है? 3:1 का रेशियो मिल रहा है. ठीक है, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट दी ऑल दी 6 कैरेक्टर्स, ऑल द रेस्ट ऑफ द 6 कैरेक्टर्स, तो उन 6 कैरेक्टर के साथ क्या होगा? अगर मैं बाकी के 6 कैरेक्टर की बात करता हूं तो बाकी के 6 कैरेक्टर के साथ क्या होगा? द रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स, बिकॉज 1 कैरेक्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट. जो 6 कैरेक्टर बचे उनके साथ क्या होगा? तो F1 जनरेशन में this is termed as the F1 जनरेशन. ओके, मैं लिखता हूं यहां पे, दिस इज F1, द फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है. दिस इज F1, दिस इज F2. ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहा जाता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सेकेंड फिलियल जनरेशन. फिलियल मीन्स ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट, चलो इसको नेक्स्ट उस पे करते हैं. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट अ सिंगल कैरेक्टर. सो दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. ओके, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. यहां पे ये मैंने डिटेलिंग बता दी. दिस इज द पेरेंटल जनरेशन. देन देयर इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ओके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सब प्लांट्स क्या थे? टॉल थे. एंड दिस इज द सेकंड फिलियल जनरेशन जिसमें क्या किया आपने? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था और आपको क्या मिला? 3:1 का रेशियो मिला. मतलब टॉल प्लांट्स भी मिले और आपको डॉफ प्लांट्स भी मिले. टॉल एंड डॉफ बोथ द प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट वन ऑफ द कैरेक्टर. अगर बाकी के 6 कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए, जो बाकी के रह गए कैरेक्टर, तो उनके साथ क्या हुआ? द रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स remaining 6 कैरेक्टर उनके साथ क्या हुआ? तो उनके साथ F1 जनरेशन में, अगर आप F1 जनरेशन को कंसीडर करो, तो उनके साथ भी क्या हुआ? ओनली वन, व्हाट यू कॉल, वन पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड. वन parental trait expressed. That means जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपको सिर्फ टॉल मिला था,
वैसे ही बाकी 6 कैरेक्टर्स में भी क्या होगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर मिलेगा। और F2 जनरेशन में क्या हुआ उनके साथ फिर, तो F2 जनरेशन में उनके साथ क्या हुआ, बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स वर, बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स वर ऑब्जर्व्ड, है ना। जैसे कि अपन को टॉल भी मिला, डॉफ भी मिला, तो बाकी के कैरेक्टर्स के साथ भी क्या हुआ, तो बाकी के कैरेक्टर्स भी क्या हुए, दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले F2 जनरेशन। बट F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। आपको दिमाग में ये बात डाल दे दी, ठीक है। फिर मेंडल ऑल्सो परफॉर्म दी, दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल डिड परफॉर्म डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड एज वेल, ओके। मेंडल परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड एज वेल, ठीक है। उन्हें मोनोहाइब्रिड तो किया ही था, पर मोनोहाइब्रिड के साथ डाइहाइब्रिड भी किया था। डाइहाइब्रिड आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और ट्राइहाइब्रिड भी किया था। तो यार डाइहाइब्रिड में क्या कंसीडर किया गया था, सो डाइहाइब्रिड में डाइहाइब्रिड में कंसीडर किया था 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, एंड 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था, ठीक है। कौन से कैरेक्टर्स यूज किए गए थे वो आपको मुझे व्हाट्सएप करके बताना है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जो आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें मेंडल ने कौन से 2 कैरेक्टर्स को चूज किया था वो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे जब आप ये वीडियो देखते हो, ठीक है। सो 2 पेयर्स, ठीक है। ट्राइहाइब्रिड में क्या किया, सो ट्राइहाइब्रिड में ही टोक 3 pairs of contrasting trait, 3 pairs of contrasting traits and 3 pairs of contrasting characters. 3 pairs of contrasting trait and 3 pairs of contrasting characters were used by Mendel, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में 1 पेयर था, डाइहाइब्रिड में 2 पेयर है, ट्राइहाइब्रिड में 3 पेयर, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो आपको मुझे बताना है कि मेंडल ने कौन से 2 कैरेक्टर्स यूज किए थे उसके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर देना मुझे, क्लियर है। सो F1 जनरेशन में आप कोई भी कैरेक्टर कंसिडर कर लो, बाकी के जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स थे जो आपने लिख रखे, तो उनमें हमेशा आपको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता हुआ मिलेगा। बट F2 जनरेशन में आपको दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स ऑब्जर्व होते हुए, एक्सप्रेस होते हुए मिलेंगे। सो ओनली 1 पेरेंटल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस, और यहाँ पे बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। सिंपल एंड इजी, ठीक है। सब सो व्हेन मेंडल परफॉर्म्ड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, तो ही सेट अप सम व्हाट यू कॉल प्रिंसिपल्स, ही सेट अप सम प्रिंसिपल्स आउट ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एंड आउट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स वर कंसिडर्ड एज द लॉ, some of the principles they were considered as law. Now what does a law mean? Law means it should be applicable to all, it should be applicable to all worldwide it should be applicable, universally it should be accepted. But there were some laws which were not accepted, which were not applicable worldwide. There were some changes in it, so let's talk about it. So from the different hybridization experiments, from different hybridization experiments,
experiments. We're talking about Mendel, Gregor Johann Mendel. Mendel set up some principles which were later on considered as law. So from different hybridization experiments, Mendel set up some principles, and those principles were later on considered as law. Law has a universal acceptance. Okay? So one of the principle is principle of inheritance. So there was principle of inheritance. Okay? Then the second was principle of dominance. Principle of dominance. The third was the principle of segregation. Principle of segregation. Okay? Which is also known as the splitting of hybrids. Which is also known as splitting of hybrids or purity of gametes or purity of gametes. ठीक है, एक की बात करो, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स कहा जाता है, या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है. ठीक है. देन वन मोर वाज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो from his work of hybridization, different hybridization, monohybrid, dihybrid, trihybrid, what he derived some principles. Okay, so principles of inheritance, principle of dominance, principle of segregation or splitting of hybrids or purity of gametes, and the principle of independent assortment. Okay, out of this principle, some of the principles were converted as the law. Some of the principles were converted as law. Okay, so principle of dominance was converted as law of dominance. Principle of segregation was converted as law of segregation, and the principle of independent assortment was considered as the law of independent assortment. So this is law 1, this is law 2, and this is law 3. So law 1 is law of dominance, law 2 is law of segregation, law 3 is law of independent assortment. जैसे मैंने बताया कि when you talk about a law, it should have a universal acceptance. It should be applicable for all. It should be universally accepted. ठीक है? But in case of this law, some of the laws were not universally accepted. Some of the laws were not universally accepted. ठीक है? So the one which was universally accepted was the law 2. Only law 2 was universally accepted. Law 2 was universally accepted. Law 1 and law 3 were not universally accepted. Law 3 were not universally accepted.
Why it was not universally accepted? Because there were some variation. Okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, they were not universally accepted. ठीक है, why they were not universally accepted? Because there was some another phenomena occurring. Okay, dominance के साथ एक और चीज देखने को मिलती थी कोई दूसरे plants में, not in the pea plant but in some other plants, some other principle was observed. Okay, some other law was observed. So that was incomplete dominance. जो दूसरा फिनोमिना देखने को मिला था, that was incomplete dominance or and co-dominance ठीक है। तो पी प्लांट में डोमिनेंस देखने को मिलता था, बट जब दूसरे प्लांट में ऑब्जर्व किया गया तो जो लॉ वन था इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू द पी प्लांट। बट इफ यू टॉक अबाउट अनदर प्लांट्स तो वहां पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है एंड को डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर लेक्चर्स, ठीक है। और जो लॉ 2 था दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ दूसरा फिनोमिना भी देखने को मिला, दैट वाज लिंकेज। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 3 लॉ मेंडल के थे, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें से एक ही लॉ जो था दैट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड दैट इज द लॉ नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। The rest of the laws, law 1 and law 2, were not universally applicable because they had some contradiction. They had some other phenomena, that is the incomplete dominance and the co-dominance occurring in other plants and the linkage occurring in other plants. Okay, getting the whole idea? Clear? So let's move ahead and let's talk about the principle of inheritance and the dominance की बात कर लेते हैं। Okay, so now principle of bad factors and dominance. Principle of bad factors and dominance. So during his work of monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross, Mendel observed that there is something being passed from one generation to another. There is something being passed from one generation to another, and that something is not changed, it remains unchanged, it remains the same. Something is passed unchanged. Something is passed unchanged, okay, from one to the next generation. From one to next generation. From one to next generation, something is being passed which remains unchanged from one generation to the next generation. ठीक है। He termed that something as the unit factor. Mendel termed that something as something था, he termed that something as यूनिट फैक्टर। क्या कंसिडर किया उसने समथिंग को एज द यूनिट फैक्टर, जिसको अभी वी टर्म इट एज व्हाट, वी टर्म इट एज जीन, वी टर्म इट एज द जीन। बट मेंडल ने जब इनिशियली इस चीज को
कंसिडर किया था, तो ही टर्म्ड इट एज अ यूनिट फैक्टर. द टर्म जीन केम लेटर ऑन. समझ में आ गया? सो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने देखा कि समथिंग इज बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड दैट समथिंग इज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, unchanged from one generation to the next generation. So he termed that something as the unit factor, जिसको we term it as the gene. We term it as the gene, and that unit factor consists of information for expression of characters. The unit factor considered, or so the unit factor consists of, that unit factor consisted of expression, or consisted of information for expression of a character. ठीक है, that something had information for expression of character. Clear है? So, and he also came to understand that each trait, each character has a specific unit factor. Okay, he also, each character has a specific यूनिट फैक्टर. जैसा अपन बोलते हैं ना, वन जीन वन कैरेक्टर. ओके, हर एक जीन एक कैरेक्टर देने का काम करे, तो वही चीज उसने बोली कि यार ईच कैरेक्टर हैज अ स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यूनिट फैक्टर क्या करता है, इट हैज द इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर. सो दैट मीन्स अ स्पेसिफिक यूनिट कैरेक्टर इज गोइंग टू गिव यू अ स्पेसिफिक यूनिट फैक्टर इज गोइंग टू गिव यू अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. ठीक है, ईच स्पेसिफिक कैरेक्टर वी कैन यूज द टर्म. क्लियर है? और ये भी चीज उसने देखी कि यार ये जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं, ओके, दे आर इन पेयर्स, दे आर इन पेयर्स. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. लेट्स कंसीडर क्रोमोसोम. बिफोर द डुप्लीकेशन, जैसे कि आपने सेल साइकिल पढ़ा, तो सेल में जो आपका फेस होता है, G1 फेस है, S फेस है, G2 फेस है, तो उसमें डुप्लीकेशन मतलब G1 के बाद S फेस जो है उसमें डुप्लीकेशन होता है. तो S फेस से पहले क्रोमोसोम कैसे दिखेगा? सो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस. ठीक है, सिंगल आर्म्स होते हैं, डबल आर्म्स नहीं होते. S फेस के बाद डबल आर्म्स हो जाते हैं, इट गोज लाइक दिस. डुप्लीकेशन होता है तो उसके आर्म्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. ठीक है, clear है? So this is also a chromosome, this is also a chromosome. You count the chromosome on the basis of their centromere. This is the centromere. ठीक है, so let's consider ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे there is a gene located. There is a gene located. तो अगर यहाँ पे जीन लोकेटेड है तो इसका जब डुप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे भी सेम जीन आ जाएगा. ये आपको पता होना चाहिए. Both the arms would considered would have the same gene on the same place. मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल. Okay, so now it has a gene for stem height. It has a gene for the stem height, and let's say this is the fourth chromosome. कौन सा क्रोमोसोम है ये? फोर्थ क्रोमोसोम. तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्रोमोसोम पे क्या होता है. फोर्थ क्रोमोसोम का जो P आर्म है, दिस इज द P आर्म, दिस इज द Q आर्म. ओके, तो P आर्म पे क्या है, जीन फॉर स्टेम हाइट है. जीन फॉर स्टेम हाइट है. ठीक है, अब ये जो जीन है, इट वुड हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इट वुड हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. पता है ना आपको, हर एक जीन में जो न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट होगा वो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड ऑलवेज, ऑल द टाइम इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड. ठीक है, सो यहाँ पे देयर इज अ जीन फॉर द स्टेम हाइट एंड इट वुड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और जो लोकेशन है उसका, मैंने बोला यहाँ पे लोकेटेड है, पी आर्म पे लोकेटेड है. ओके, सो दैट लोकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी फिक्स्ड. फिक्स्ड पोजीशन.
सो एवरी टाइम इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जीन फॉर स्टेम हाइट, तो वो आपको 4th क्रोमोसोम पे P यहाँ पे दिखेगा, तो पोजीशन फिक्स होगी। तो पोजीशन के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं लोकस। कौन सा टर्म यूज करते हैं? लोकस, ठीक है। सो द लोकस ऑफ जीन फॉर स्टेम हाइट इज ऑन द P, ठीक है। अब आपको पता है क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। और फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। और बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करता है? तो ये प्रोटीन हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दिस प्रोटीन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये प्रोटीन क्या बनाता है? ग्रोथ हार्मोन बनाता है। कौन सा ग्रोथ हार्मोन? तो यहां पे विल टॉक अबाउट द ग्रोथ हार्मोन दैट इज गिबरेलिक एसिड। मैं बात करूंगा कौन से हार्मोन की? गिबरेलिक एसिड की बात करूंगा। इट्स अ फाइटो हार्मोन व्हिच इज फाउंड इन द प्लांट्स। तो जब प्लांट के अंदर प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन जब प्लांट में प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा? ये करेगा इंक्रीज इन द इंटरनोडल it would cause the increase or the elongation in internodal section। जो इंटरनोडल सेक्शन है प्लांट का, नोड्स वाला जो पोर्शन होता है, तो वहां पे क्या होगा? इलोंगेशन होगा। और जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाएगा? द प्लांट वुड बिकम, जब उसके नोड्स में इंटरनोडल सेक्शन में इलोंगेशन होगा, द प्लांट वुड बिकम टॉल। क्या हो जाएगा? प्लांट टॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो जो जीन था, उस जीन का पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन बनाने में हेल्प करेगा। कौन सा ग्रोथ हार्मोन? फाइटो हार्मोन, दैट इज द GA गिबरेलिक एसिड। और ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा इन द इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोडल, ओके, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल सेक्शन लिखूंगा मैं, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल सेक्शन which would make the pea plant appear tall, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टॉल वाला कैरेक्टर था, that was termed as the dominant trait। It was termed as the dominant trait। और जो अल्फाबेट यूज किया जाता है डोमिनेंट ट्रेट के लिए, that is in capital, that is आप कैपिटल टी यूज करते हो, it should be written in capitals, ठीक है। सो नाउ यू हैव द आइडिया कि यार किस तरीके से जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, प्रोटीन ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, ग्रोथ हार्मोन से इंटरनोडल टिश्यू का एलोंगेशन हुआ, जिसकी वजह से प्लांट क्या हो गया? टॉल हो गया। एंड वी कंसीडर टॉल एज द डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो अल्फाबेट यूज किया जाता है उसको डिनोट करने के लिए, जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज इट इज ऑन द 4th क्रोमोसोम, इट इज लोकेटेड ऑन द 4th क्रोमोसोम, ठीक है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा कि मैं बात कर रहा था कि जो 7 कैरेक्टर्स है, दे आर नॉट डिफाइंड बाय 7 जीन्स और 7 क्रोमोसोम्स, दे आर ओनली डिफाइंड बाय द 4 क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम का नंबर मैंने आपको दिया था कि 1457। 1457 वाला जो क्रोमोसोम है वही 7 कैरेक्टर देने का काम करता है, ओके। वो प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। अब ये बताया किसने था? हु डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना, कि जो 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट में है वो 7 क्रोमोसोम्स नहीं दे रहे, खाली 4 क्रोमोसोम दे रहे। दिस वाज गिवन बाय एस ब्लिक्सेट। एस ब्लिक्सेट। सो जो आपका प्रीवियस लेक्चर का नोट है उसमें लिख देना एस ब्लिक्सेट का नाम, साइंटिस्ट का नाम। ही डिस्कवर्ड दैट क्रोमोसोम नंबर 1457, दे आर गिविंग 7 कैरेक्टर्स टू दी पी प्लांट। दे आर गिविंग 7 कैरेक्टर्स टू द पी प्लांट, 1457। So that was discovered by S. Blixet, ठीक है। Is this clear? So now what happened in the course of time?
जैसे जैसे चेंजेस आते गए, तो जो जीन था याला जीन फॉर स्टेम हाइट, इसके अंदर क्या हुआ, देयर अपीयर्ड सम म्यूटेशन एंड दिस जीन विच वाज प्रोड्यूसिंग ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोटीन्स बना रहा था, उसने ग्रोथ हार्मोन को बनाना बंद कर दिया ड्यू टू द चेंज इन द जीनोटाइप। तो जब उसने ग्रोथ हार्मोन को बनाना बंद कर दिया तो क्या हो गया, प्रोड्यूस नहीं होने लगा, ये प्रोड्यूस नहीं होने लगा, तो इलोंगेशन भी नहीं हुआ, इलोंगेशन नहीं हुआ तो प्लांट क्या रह जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, प्लांट इज गोइंग टू गेट ड्वार्फ। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं in a course of time the gene for tall height had some changes. Okay, या फिर I can also put it as, ये changes की जगह I can also use the term mutation. क्या हो गया, उसके अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ in a course of time. In a course of time, the gene for tall height, जो कौन सा कैरेक्टर देता था tall height, had some changes, it underwent mutation. तो जब चेंज हो जाएगा इस जीन के अंदर, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कुछ और आएगी, जो पहले आती थी वो तो नहीं आने वाली ना, और जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो जो प्रोटीन बनेगा कोई और प्रोटीन बनेगा। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, सो मैं यहां लिखूंगा डिफरेंट प्रोटीन, और डिफरेंट प्रोटीन आया तो क्या होगा, जो एंजाइम बनेगा वो एंजाइम क्या होगा, वो एंजाइम का प्रोडक्शन काफी कम होगा या फिर नहीं भी होगा, आप बोल सकते हो। सो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मैं कंसिडर करता हूं कम हो जाएगा या फिर नेग्लाइजिबल हो जाएगा। तो जब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन काफी कम हो जाएगा, नेग्लाइजिबल हो जाएगा, तो इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड सेक्शन डज नॉट अकर। तो जब ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा ठीक से, तो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल सेक्शन नहीं हो पाएगा, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोडल सेक्शन डज नॉट अकर। और जब इंटरनोडल सेक्शन इंक्रीज ही नहीं करेगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है ही नहीं, तो क्या होगा, प्लांट टॉल नहीं हो पाएगा, प्लांट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। और प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा तो इस कैरेक्टर को क्या कंसिडर किया जाता था, दिस कैरेक्टर और दिस ट्रेट वाज कंसिडर्ड एज रिसेसिव ट्रेट। क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज द रिसेसिव ट्रेट। एंड द अल्फाबेट जो आप यूज करते थे, इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज स्मॉल टी। ओके, इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज स्मॉल टी। समझ में आ गया। तो इनिशियली जो जीन अवेलेबल था क्रोमोसोम के ऊपर, दैट वाज गिविंग टॉल हाइट, बट इन अ कोर्स ऑफ टाइम वो जीन में थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो गया एंड द प्रोटीन इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वाज अ डिफरेंट प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्रोथ हार्मोन था उसका प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया या फिर नेग्लाइजिबल हो गया, और जिसकी वजह से इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोडल सेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया, इलोंगेशन नहीं हो पाता था, और प्लांट क्या रह जाता था, ड्वार्फ रह जाता था। एंड इस कैरेक्टर को वी टर्म्ड इट एज द रिसेसिव ट्रेट, और जिसके लिए जो अल्फाबेट अपन यूज करते हैं दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी। क्लियर है। तो ये जो मैंने बोला कि यहां पे मॉडिफिकेशन हो गया किसका, उस पर्टिकुलर जीन का, सो दैट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज अलील। आई होप दिस इज क्लियर। एस ब्रिक्सेट का नाम लिखना मत भूलना प्रीवियस नोट्स में। ओके, slightly modified or mutated form of, slightly modified or mutated form of same gene,
is known as allele. Is known as allele. Slightly modified or mutated form of same gene is termed as allele. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? एक और जो चीज आपको याद रखनी है, दैट इज द यूनिट फैक्टर्स आर इन पेयर्स. जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यूनिट फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर इन पेयर, मतलब जीन्स आर इन पेयर. are in pairs. Are in pair condition. ठीक है, सो किस तरीके से पेयर कंडीशन में है, जैसे पीसम सटाइवम की बात करते हैं. सो वी टर्म पीसम सटाइवम पीसम सटाइवम जो होता है दैट इज we put it as 2n, मतलब it is supposed to have two set of chromosomes. Okay, 2n का मतलब क्या हो, it consists of every organism can consist of two set of chromosome. So it consists of two set of chromosome. ठीक है, in each set अपन बोलते हैं ना, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. सो 23 पेयर्स मतलब हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हुए. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट. ओके, एंड द क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. एक ही सेट के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, सो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेट, और आई एम सॉरी इन ईच पेयर, आई शुड पुट इट एज 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी ईच पेयर में. ठीक है, सो देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर and the chromosomes are termed as homologous chromosomes. क्या कहा जाता है उन क्रोमोसोम को, they are termed as the homologous chromosome. Why homologous chromosome? Because they are similar in size. They are similar in size. They are similar in size. I'm sorry, they are similar in position of centromere. They are similar in position of centromere. और एक और चीज, they are similar in position of genes. They are similar in position of genes. ठीक है, तो व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो आपको याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक ही सेट में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक ही सेट में प्रेजेंट है तो उनका जो साइज है, हाइट है, वो भी क्या होगा, सेम होगा. उनका जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है वो भी क्या होगा, सेम होगा. और द पोजीशन ऑफ जीन्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. हाइट सेम होगी, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होगा. आपको पता है ना, सेंट्रोमियर की पोजीशन पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन भी सेम होगा और जीन का पोजीशन भी सेम होगा. ठीक है, सो लेट्स कंसीडर 2 क्रोमोसोम्स और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो अगर मैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम कंसीडर करता हूं एक सेट के, क्योंकि अगर दूसरा सेट आप कंसीडर करोगे तो उसका क्रोमोसोम अगर आप दूसरे सेट के साथ कंपेयर करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी होमोलोगस. लेट्स से दिस इज 1 2, दिस इज 1 फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर. तो यहां पे जो क्रोमोसोम है
दिस इज जस्ट द रफ डायग्राम। तो ये दोनों क्या, ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है। ये और ये होमोलोगस नहीं कंसीडर किए जाएंगे, ये और ये होमोलोगस कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इनके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर में डिफरेंस होगा, पोजीशन ऑफ जीन्स में डिफरेंस होगा, प्लस इनकी साइज, इनकी हाइट में भी डिफरेंस होगा। तो एक ही पैर के दोनों क्रोमोसोम को होमोलोगस कहा जाता है, दूसरे पैर के क्रोमोसोम्स को आप होमोलोगस नहीं कंसीडर करोगे। ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, बट ये और ये होमोलोगस नहीं है, ये और ये होमोलोगस नहीं है, बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट सेट। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर द homologous chromosome. So let's say this is a homologous chromosome. अगर इस क्रोमोसोम के पास यहां पे एक पर्टिकुलर जीन है, let's say there's a gene for height, ठीक है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या होगा, देयर इज अ जीन फॉर हाइट। क्या होगा, जीन फॉर हाइट। ठीक है, अगर यहां पे देयर इज अ जीन फॉर फ्लावर कलर, तो दूसरे क्रोमोसोम के भी सेम पोजीशन पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी जीन फॉर फ्लावर कलर। एंड लेट्स से यहां पे जीन है दैट इज फॉर दी फ्लावर पोजीशन। ठीक है, सो जीन फॉर फ्लावर पोजीशन, तो दूसरे क्रोमोसोम के, उसी सेट के दूसरे क्रोमोसोम के पास भी सेम पोजीशन पे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी जीन फॉर फ्लावर पोजीशन। ठीक है, तो पैड में हो गया 1 2 1 2 1 2, सो क्या दे आर पैड, द यूनिट फैक्टर्स आर पैड। यूनिट फैक्टर्स आर पैड। ठीक है, तो पैडिंग में होगा। सो जीन फॉर हाइट की अगर मैं बात करता हूं, तो लेट्स से अगर यहां पे कैपिटल टी है, तो यहां पे भी कैपिटल टी हो सकता है। ठीक है, यहां पे कैपिटल टी है तो यहां पे स्मॉल टी भी हो सकता है, यहां पे स्मॉल टी है यहां पे भी कैपिटल टी हो सकता है। मतलब जो जीन फॉर हाइट तो रहेगा, बट उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, उसके एलील्स अलग हो गए। ठीक है, सो यहां पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, तो अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है तो दूसरे पे भी कैपिटल टी हो सकता है, एक क्रोमोसोम पे स्मॉल टी है तो दूसरे पे भी स्मॉल टी हो सकता है, पैर में लिख रहा हूं, या फिर एक पे कैपिटल टी है तो दूसरे पे स्मॉल टी हो सकता है। 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है, 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। अगर कैपिटल टी है तो दिस इज नोन एज होमोजाइगस, इसे होमोजाइगस कंसिडर किया जाता है, दोनों सेम है। अगर स्मॉल टी है तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज होमोजाइगस, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग है, सो इट इज टर्म्ड एज हेटेरोजाइगस। ठीक है, 3 प्रोबेबिलिटीज है, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर कैपिटल टी है तो विल कंसीडर होमोजाइगस, अगर स्मॉल टी विल टर्म इट एज होमोजाइगस, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो विल टर्म इट एज हेटेरोजाइगस। क्या कहा जाएगा, हेटेरोजाइगस। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आएगा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, सो इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा, आपको पता है, दिस इज गोइंग टू बी टॉल, दिस इज गोइंग टू बी dwarf, and this is going to be tall. ठीक है, this is going to be tall, dwarf, tall, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव और ये डोमिनेंट, तो ये क्या करेगा, रेसेसिव वालों को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील
द रेसेसिव अलील इज नॉट गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एक और चीज मैं लिख देता हूं, ये पूरे जीन्स लिखे हुए यहां पे, तो दिस इज टर्म्ड एज दी जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप क्या दे रहा है, एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन दे रहा है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज कंसिडर्ड एज phenotype. So there is a genotype and there is a phenotype. Clear है? Clear है? So genes, unit factors, so genes are packed. Okay, one is going to be dominant, another is going to be recessive. तो अगर homozygous condition है तो दोनों dominant है या फिर दोनों recessive है। अगर heterozygous condition है, एक dominant है, एक recessive है। ठीक है? Simple and easy. Fourth chromosome. This both are fourth chromosome. ओके, फोर्थ क्रोमोसोम इज दी 7 पेयर्स होते हैं ना, उसमें से फोर्थ पेयर की बात हुई है। दिस इज दी फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है? एक और चीज आपको याद रखनी है, इसको क्या कंसिडर किया जाता है। स्टार्टिंग में बता दिया, टर्म्ड एज प्योर लाइन्स। सो मैं लिख लेता हूं यहां पे होमोजाइगस पेरेंट्स और लेट्स से homozygous condition is termed as pure lines or it is considered as pure breeds। तो जब भी आप क्रॉस करते हो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड, तो हमेशा पेरेंट्स क्या होना चाहिए, पेरेंटल जनरेशन क्या होना चाहिए, the parental generation should be pure breed. It should be pure breed or it should be pure line. Clear? So I hope this is clear. कि every gene would be paired. Okay? उसके alleles present हो गए homologous chromosome पे। pair मतलब 2 1 1 2 हो गए। ठीक है? So अगर TT है कैपिटल T तो homozygous स्मॉल t साथ में है तो homozygous, बट अगर कैपिटल और T और स्मॉल t है so that is heterozygous। ठीक है, so I hope this is clear। So we have talked about the Mendelian experiments, ठीक है, or the Mendelian concepts। So in the next lecture we would be moving ahead and we would be talking about the new concepts and the new topic regarding the chapter। ठीक है, so once you are watching this lecture you have to make the notes, okay, और आपको notes लिख के WhatsApp करना है मुझे, ठीक है, मेरे नंबर पे। डन, चलो बाय बाय।